मसीह के नाम में हम आप सभी को अभिवादन करते हैं और रविवार की सलाम आप सभी को। आज बहुत ही आनंद की बात है कि हमारे मध्य में मिस्टर यशवंत बाका प्रभु का वचन बांटेंगे। वे यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में पुराने नियम के अध्यापक हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा समय आशीषित रहे। Greetings to one and all. It is our pleasure to introduce to you all our today's preacher. He is Mr. Yashwant Baka, a lecturer of Old Testament in Union Biblical Seminary, Pune, and he hails from Andhra Pradesh. He is blessed with a wife and 2 children. Hope you all will be blessed by today's sharing. God bless you all. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सबों को अभिवादन करते हैं। It is indeed my privilege to come before you in this manner to share the word of God to you. और प्रभु का वचन बांटने के लिए मैं आपके मध्य में आ पाया, ये मेरे लिए सचमुच में बहुत ही बड़ा अवसर है। And I greatly indebted to the Dauntless Pulpit for giving me this opportunity. और डॉन्टलेस पुलपिट का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। Shall we pause for a moment in prayer before we proceed to the word of God? वचन में मनन करने के पहले हम प्रार्थना करें। Father God, we come to you to thy throne of grace this day. Lord, we pray that you grant us your strength and comfort through your word so that we could go through this difficult phase in our lives. And we believe that you are in absolute control, and we pray that you help us to come through this difficult phase of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, today I'm going to talk about Christ's resurrection. आज मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात करना चाहूंगा। Many of us might have had a lot of reactions to the ongoing crisis that we are all in. हम लोगों में से काफी सारे लोगों के पास अलग-अलग प्रतिसाद आए होंगे आज की समय की हम जो महामारी में से गुजर रहे हैं उसके लिए। Some might be asking, where is God in all this? कुछ लोग शायद ये प्रश्न भी पूछ रहे होंगे कि परमेश्वर कहाँ है इन सब के बीच में। Some might be going through moments of despair. और कुछ लोग शायद बहुत ही हताशा भरे समय में से गुजर रहे होंगे। Some might be going through moments of disbelief. कुछ लोग शायद अविश्वास के समय में से गुजर रहे हो। And some might be even going through a lot of confusion, delusion. और बहुत सारे लोग शायद बहुत ही अलग-अलग प्रकार के उलझनों और मूंझवण में से भी गुजर रहे हो। Because life as we know has come to a halt, a complete lockdown. क्योंकि जिस तरह से हम जीवन को जानते हैं वो जीवन तो पूर्ण रीति से सब स्तब्ध हो चुका है, वो बंद पड़ गया है। There is a lot of uncertainty around us. और हमारे आसपास इर्द-गिर्द बहुत ही अनिश्चितताएं हैं। And a lot of perplexity. और बहुत ही उलझन भरी परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं। Our faith in God has come to a halt. It's kind of locked down. और हमारा शायद विश्वास भी परमेश्वर पर का वो भी शायद बंद हो चुका ऐसा लग रहा है, वो शायद अटक गया ऐसा लग रहा है। Reason is because of the fear of death that gripped us. ये शायद इसका कारण शायद ये किए है कि हम सबको मरण का डर है, मृत्यु का डर है जिसने हमें जकड़ के रखा है। In that context, I want to ask this question: what is that resurrection that is going to offer to us in this crisis? और इस परिस्थिति के अंदर मैं आपके सामने ये पूछना चाहूंगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें इससे क्या प्रतिसाद देगा? Is there a hope at all? क्या इसमें बिल्कुल भी कोई आशा है? So let us meditate. I want you to turn with me with John chapter 20, verses 19 and 28. When it was evening on the day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." And verse 28, Thomas answered him, "My Lord and my God." और अभी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से उसके 20वें अध्याय के 19 और 28 पद को पढ़ेंगे। 19वां पद, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदी धर्मगुरुओं के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे,
यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। 28वां पद, थॉमस ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। This is very relevant scripture portion for us to meditate upon. ये आज के समय के लिए बहुत ही योग्य ऐसा शास्त्र पाठ है मनन करने के लिए। There's a particular word that is I want to draw your attention to in verse 19. The doors of the house where the disciples had met were locked for the fear of Jews. और वहां पर जो एक वाक्य पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, 19वें पद के अंदर लिखा है कि यहूदी धर्म गुरुओं के भय से शिष्य द्वार बंद किए एकत्र थे। So this particular text comes after Christ has resurrected. और ये शास्त्र पाठ तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का है। And Jesus, in the midst of their lockdown because of fear, appears amidst of them and offers peace to them. और यहाँ पर यीशु मसीह जो है, ये लोग जो भय के मारे अपने घरों के अंदर बंद होके बैठे हुए थे, एकदम से यीशु मसीह इनके मध्य में खड़े होकर उनको शांति प्रदान करता है। So let us study at least 3 of Christ's post-resurrection appearances. तो आइए हम इसके बाद जो है यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद 3 बार जो अपने आप को लोगों के सामने लाए, उस पर हम अभ्यास करें। We will be running through all the 4 Gospels हम चारों के चारों सुसमाचार में से मनन करेंगे in relation to the post-resurrection appearances. जहां पर भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद के सारे जो उन लोगों के सामने उपस्थित हुए उसके बारे में लिखा हो। And 2 things stand out in all these post-resurrection appearances. और इन सारे के सारे उपस्थितियों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद के 2 अलग बातें हैं। In all these incidents, इस सारे की सारी घटनाओं में Christ meets them in their emotional, spiritual and intellectual needs. यीशु मसीह जो है उनको उनके भावनात्मक, उनकी आत्मिक और बुद्धि से संबंधित सारी उनकी जरूरतों को पूरी करता है। The second one is all of these appearances end in witnessing Christ's resurrection to the world. और दूसरा जो है, ये सारी की सारी जो बात घटनाएं हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की इस साक्षी को प्रदर्शित करती है। My first insight would be from Matthew chapter 28 verse 10. मत्ती 28 और 10 में से हम पहली बात को सीखना चाहेंगे। Matthew chapter 28 verse 10, which says, Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, there they will see me. और मत्ती 28 और 10 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों से यह संदेश दो कि वे गालील प्रदेश में जाए, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। This particular text comes in a context of despair. ये एक ऐसा ये जो वाक्य है, ये जो संदर्भ है, वो तो एक हताशा का संदर्भ है। So this first insight would be resurrection as an antidote to our despair. और आज के समय का जो पहला विचार जो मैं रखना चाहूंगा वो ये है कि पुनरुत्थान जो है वो हताशा के सामने एक दवाई है। As Jesus died, जब यीशु मसीह मारे गए, hopes of the disciples were shattered. और ये चेले की सारी आशाएं जो थी उस पर पानी फिर गया था। The faith turned into despair. उनकी जो विश्वास था वो तो एक हताशा में परिवर्तित हो गया। Is in that context, और इस परिस्थिति के अंदर God has used few women to witness and proclaim His resurrection. और यीशु मसीह ने जो है, परमेश्वर ने कुछ महिलाओं का उपयोग किया ताकि वे इस बात का सुसमाचार लेके इसको साक्षी दे पाए। Because if you read a few verses earlier, that verse 10, you see these women are looking for Jesus in the tomb. और अगर आप इसके पहले के अगर कुछ पदों को पढ़ेंगे तो वहां पे साफ-साफ लिखा है कि ये जो महिलाएं थी, ये यीशु मसीह को कब्र में ढूंढ रही थी। They are looking for some sort of assurance, a closure. वो किसी भी प्रकार की ऐसी सांत्वन वाली बात को ढूंढ रही थी वहां पर। But they are seeking a crucified Christ while he is already risen. परंतु वे महिलाएं तो एक क्रूसित यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, हालांकि यीशु मसीह का तो पुनरुत्थान हुआ था।
Sometimes, we see God in wrong places. काफी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को गलत जगहों में ढूंढते हैं। It could be our false securities in our jobs, in our wealth, in our health. हमारी शायद वो सब गलत जो सुरक्षा की बातें हम मानते हो, शायद हमारी संपत्ति में, हमारी तंदुरुस्ती में, It could be our status quo. हमारी नौकरी में, या फिर हमारे मान सम्मान रुतबे में। Today, all those things could not help us. आज के समय में इन सब में से किसी चीज भी हमें मदद नहीं कर पाएगी। And we are seeking God in all those things. और हम दरअसल में परमेश्वर को इन्हीं सब चीजों में ढूंढ रहे हैं। Some people are hoarding all those things to just accumulating all the groceries in their homes. काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीकों से अपने घरों को भर रहे हैं अलग अलग सर सामग्री के साथ। And some of us may be hoping that some sort of vaccine may come और हम में से लोग कोई लोग ये भी आशा रख रहे हैं कोई प्रकार की रस्सी आ जाए जल्दी से। But unless we look to Him, परंतु जब तक हम उनके सामने नहीं देखेंगे, we cannot find any hope in any of these materialistic things. और हमें इन सब सांसारिक चीजों के अंदर कोई भी प्रकार की आशा नहीं मिलेगी जब तक हम उनको नहीं देखेंगे। Women here represent a desperate humanity. यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो एक प्रकार की बहुत ही चिंताजनक, चिंतामय ऐसे मानव जात को दर्शाती है, Are gripped with despair. जिनके अंदर हर एक प्रकार से हताशा और निराशा भरी हुई है। And to such humanity, God offers courage. और इस प्रकार की ऐसी मानव जात को परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, उनको जो सामर्थ्य देता है। That's why when Jesus appeared to these women, He said, "Do not be afraid." इसीलिए यीशु मसीह जब इन महिलाओं के सामने आए तब उन्होंने उनसे कहा कि आप डरो मत। So resurrection offers courage in the midst of despair. इसका मतलब है कि पुनरुत्थान जो है वो निराशा वाली समय के अंदर हमें सामर्थ्य देती है। I want to illustrate a true incident that has happened in the life of one of our former principals. और आज मैं आपके सामने एक ऐसे जीवंत उदाहरण को रखना चाहूंगा जो यूबीएस के एक आगे हो गए ऐसे प्रिंसिपल के साथ हुआ था। His son suddenly met with an accident and passed away. उनके जो पुत्र थे वो अचानक से एक अकस्मात से मिले और उनका मृत्यु हुआ। And he was shattered. He went into the state of despair. वो बहुत ही हताश और निराश हो चुके थे अपने जीवन के अंदर। And he went on a sort of on leave for some time. और कुछ समय के लिए वो शायद छुट्टी पर भी उतर गए। And he returned back to the campus. और फिर वे जब कॉलेज में वापस आए, And the college has conducted a memorial service in the memory of his son. और कॉलेज ने फिर उनके पुत्र की याद में एक छोटी सी शांतवन सभा का वहां पर आयोजन किया। I was so fascinated the courageous faith that they were actually holding on to. मैं सचमुच में बहुत ही अचंभित हो चुका था जिस प्रकार का विश्वास वो अपने साथ लिए चले थे। And the principal and his wife, and from the pulpit they said this: even if God takes away our two other sons, we still follow Him. और प्रिंसिपल साहब ने और उनकी पत्नी ने वहां पर स्टेज पर से ये कहा कि भले ही और दो पुत्र जो है वो भी अगर परमेश्वर ले ले, फिर भी हम उनके पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे ही। I felt that is a tremendous faith that they have. मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा ऐसा विश्वास उनके पास है। And I felt in front of their faith, my faith is so little. और मुझे ऐसा भी लगा कि उनके विश्वास के सामने मेरा विश्वास तो कुछ भी नहीं है। And one thing I kept on asking, how could they tell this? How could they have this courage? मैं लगातार इस बात को पूछता रहा कि इनमें इतना विश्वास कैसे, इनमें इतने शक्ति और सामर्थ्य कैसे है। Unless he is totally gripped by the power of Christ's resurrection, he wouldn't have had that courage. अगर जब तक वे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से जकड़े अगर नहीं होते तो उनमें इतना सामर्थ्य नहीं होता था। So that leads me to my second insight. इसके बाद मैं अपना दूसरा विचार आपके सामने रखना चाहूंगा।
That is, resurrection as an antidote to our disbelief. इसका मतलब ये है कि पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह का वो हमारे अविश्वास के सामने एक दवाई है। I want you to turn your Bibles to Mark chapter 16 verse 14. मार्क 16 और 14 को पढ़ेंगे हम। Later he appeared to the 11 themselves as they were sitting at the table, and he upbraided them for their lack of faith and stubbornness, because they had not believed those who saw him after he had risen. इसके बाद यीशु ने 11 प्रेरितों को उनके भोजन करते समय दर्शन दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता के लिए उनकी भर्त्सना की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु मसीह को उनके जी उठने के बाद देखा था। Now the major concern is here the disciples' disbelief. यहाँ पे मुख्य जो बात देखने की वो ये है कि शिष्यों ने अविश्वास किया। As Jesus was buried, जब यीशु मसीह को दफन किया गया, so also disciples' faith was also buried. और उसके साथ साथ हम यहाँ पे पाते हैं कि शिष्यों के जो चेलों का जो विश्वास था वो भी दफन हो चुका था। People, they have lived with Jesus, journeyed with Jesus, ate with Jesus, witnessed his miracles, but still they could not believe him. ये वही लोग हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ चले, उनके साथ यात्रा की, उनके साथ भोजन किया, उनके द्वारा किए गए अलग अलग चमत्कारों को उन्होंने साक्षी किया, फिर भी वे लोगों ने विश्वास नहीं कर पाए। They know Jesus, but they could not believe him enough. और वह यीशु मसीह को जानते तो थे, परंतु वह उन पर जितना जरूरी था उतना विश्वास नहीं कर पाए। Many of us are like this. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। We know God, हम परमेश्वर को जानते हैं, we know Christ, हम यीशु मसीह को जानते हैं, we claim to know Christ. हम में से कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। When crisis strikes us, परंतु जब मुश्किल हमारे सामने आती है, we will not believe him enough. हम उन पर जितना जरूरी है उतना विश्वास नहीं रखते। And sometimes disbelief could be partly because of our own fear of crisis. और काफी बार ये जो अविश्वास है वो हमारे डर की वजह से भी होता है, जो इस प्रकार की घटनाओं का डर जो रहता है। People's fear that they will be killed by the Jews. वो चेलों को डर था कि यहूदी लोग उनको मार डालेंगे। They ran away because of fear. वो डर के मारे भाग गए थे। And top of that, we see Peter even denied Jesus. और उसके ऊपर हम ये भी पाते हैं कि पतरस ने तो यीशु मसीह का इनकार भी किया। So that's why many of us, when we face suffering, we question God. और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग जब हम दुख सहन करते हैं तब हम परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं। Tend to lose faith in God. हम विश्वास छोड़ जाते हैं, विश्वास हमारे साथ नहीं रहता है। My dear friends, there's nothing wrong in questioning God. मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। But we need to question God in faith. परंतु हमें विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रश्न पूछना चाहिए। I want you to turn your Bibles to Job chapter 42. मैं चाहता हूँ आप अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय खोले। Job chapter 42 verse 4 to 6. अय्यूब 42 4 से 6 को हम पढ़ेंगे। And I will speak, I will question you, and you declare to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. अय्यूब 42 4 से 6 इस प्रकार कहते हैं, तूने मुझसे कहा था, मेरी बात को सुन, मैं तुझसे प्रश्न करूंगा और तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रभु, मैंने तेरे विषय में केवल कानों से सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है, अतः मुझे अपने ऊपर ग्लानि होती है। मैं धूली और राख में लेटकर पश्चाताप करता हूँ। You see here Job, a man, a righteous man suffering. यहाँ पर आप अय्यूब को देखेंगे जो एक नीतिमान व्यक्ति था, वो दुख सहन कर रहा था। Was hit by crisis. उसके जीवन में मुसीबत आई थी। Was attacked. उसके विश्वास पर हमला किया गया था। Personal life was shattered. उसका व्यक्तिगत जीवन पूरा बिखर चुका था। His social life was shattered. उसका सामाजिक जीवन बिखर चुका था।
In fact, he became a stigma in the society. और दरअसल में वो तो एक समाज के ऊपर एक धब्बे के समान बन गया। Out of that anguish of his soul, he questions God. और अपने आत्मा के इस रुदन के साथ वो परमेश्वर को प्रश्न पूछता है। And when God appears to him and declares to him, और जब परमेश्वर उसके सामने आकर उसके सामने बात करता है, he despises himself, वो अपने आप को कम करता है। because whatever suffering that we go through, क्योंकि हम हमारे जीवन में जो भी दुख सहन करें, whatever anguish we go through, जो भी मुश्किल समयों का सामना करें, whatever questions we raise, जो भी प्रश्न हम उच्चारे, when we go in front of God, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, our questions are answered in his appearance. और उनके दर्शन में ही हमारे सारे जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें मिलता है। That's why Job says, I have seen him with और my इसलिए eyes. अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। See, God is very near to us when we are in fear. आप ये याद रखिए कि परमेश्वर हमारे बहुत ही निकट होता है जब हम डर के समय में होते हैं। One said like this, God whispers to us in our happiness, but speaks louder in our pain. किसी ने इस प्रकार कहा था कि हम जब हमारी खुशियों में परमेश्वर धीरे से हमसे बात करता है, परंतु हम जब दर्द में होते हैं तब परमेश्वर जो है वो चिल्लाकर हमसे बात करता है। Yes, right now our faith might be shaken. और अभी के समय शायद हमारा विश्वास डगमगा गए होंगे। Probably we are going through a lot of confusion about God and whether He is there or not, whether He is listening to our cries. हम शायद बहुत ही उलझन में से गुजर रहे होंगे, परमेश्वर की हयाती पर प्रश्न कर रहे होंगे कि वो है या नहीं, हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है या नहीं। Probably somebody who's listening to this, probably you might be at the verge of losing your faith. और आप में से अगर कुछ लोग सुन रहे हैं, आप लोग शायद विश्वास को खोने की उस आर पर होंगे। But as we have read from Mark chapter 16-14, परंतु जैसे हम मार्क 16-14 में पढ़ा है, resurrection is a rebuttal to disbelief. ये पुनरुत्थान जो है वो अविश्वास को नेस्तनाबूद करता है। It rebukes against our disbelief. वो हमारे हर एक प्रकार के अविश्वास के सामने उसको धमकाता है। And that leads to my third point. और ये मेरे तीसरे विचार के समझ ले जाता है। Resurrection as an antidote to delusion. ये जो पुनरुत्थान जो है वो छल के सामने एक दवाई। Let us turn to Luke chapter 24 verse 32. लूक 24 और 32 को हम पढ़ेंगे। 24 and verse 32. Let me read it for you. They said to each other, were not our hearts burning within us while he was talking to us on the road, while he was opening the scriptures to us? तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वह मार्ग में हमसे बात कर रहे थे और हमें धर्म ग्रंथ समझा रहे थे। I have mentioned earlier, despite the fact that Christ has risen, disciples did not believe in Christ's resurrection. मैंने पहले कहा था कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बावजूद भी शिष्यों ने विश्वास नहीं किया था कि उनका पुनरुत्थान हुआ। But deluded in their minds. उनके मनों के अंदर वो बहुत ही छल का सामना कर रहे थे। Delusion is a result of despair and disbelief. और ये जो छल है या फिर एक प्रकार का अलग भावना जो है, ये एक प्रकार की हताशा, निराशा और अविश्वास का परिणाम है। What is needed is a spiritual awakening. यहाँ पर क्या जरूरी है वो तो आत्मिक जागृति है। Luke chapter 24 verse 32. लूक 24 और 32। Jesus opens scriptures to them. परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो धर्म ग्रंथ उनको समझाते हैं। He illumines our intellect. वो हमारे बुद्धिमत्ता को चमकाते हैं। And also we have read John chapter 20 verse 19. और हमने यूहन्ना 20 और 19 को भी पढ़ा है। Jesus speaks peace in the midst of our fears. कि यीशु मसीह आकर हमें अपनी शांति देता है हमारे डर के समय के अंदर। And when you come to John chapter 20 verse 28,
और अब जब यूहान 20 और 28 में आप आते हैं, where we see Thomas confesses, "My Lord and my God," in the midst of their crisis. और फिर वहां पर हम पाते हैं थॉमस ने इस प्रकार की कबूलात की कि मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, उस मुश्किल समय के अंदर। As Jesus illumines our intellect and speaks peace in the midst of fear, and this should be our response in this crisis, "My Lord and my God." जिस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे बुद्धिमत्ता को चमकाता है, हमें रोशनी में लाता है और हमारे भय के समय में आके हमें अपनी शांति प्रदान करता है, तो उस समय में हमारा भी यही प्रतिसाद होना चाहिए जैसे थॉमस का था कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। Let me close with a true incident that has happened in Russia many years ago. बहुत सालों पहले रशिया के अंदर एक घटना हुई थी, उसके साथ मैं इस मनन को बंद करना चाहूंगा। Young preacher, एक युवान प्रचारक था वहां पर, passionate about God and the gospel, और परमेश्वर के बारे में और सुसमाचार के प्रचार के बारे में बहुत ही जुनूनी था वो। but that was a time of communist regime in Russia. परंतु एक ऐसा समय था जिसके अंदर वे कम्युनिस्ट रजीम था वहां पर रशिया में, So preaching is illegal. जहां पर प्रचार करना प्रतिबंध था। But this preacher was so fervent in his faith and he wants to spread the gospel, and obviously he was jailed because of his faith. और वहां पर वो जो प्रचारक था वो बहुत ही ऐसे जुनूनी था, उसको प्रचार करना ही था सुसमाचार का, और वहां पर हम पाते हैं कि उसको पकड़ा गया, उसको कारावास में डाला गया। He was tortured day and night to दिन refute और his रात faith. उसके विश्वास के लिए उसको परेशान किया गया। One fine day he decided, okay, let me decide today, let me refute the faith that I have in Jesus Christ. और एक दिन उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि अभी छोड़ो, अभी सारे विश्वास को छोड़ दो, जो भी मेरा विश्वास था यीशु मसीह को, मैं उसको छोड़ दूंगा अभी। So the same day he was assigned to clean the latrines of that jail. और उसी दिन शायद कि उसी दिन जो है उस प्रचारक को उस जेल के अंदर के सारे शौचालयों को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। Was cleaning, he found some pieces of papers. वो जब साफ कर रहा था तब उसे वहां पर कुछ कागज के टुकड़े मिले, And it looked very familiar to him, so he took them and he saw. और वो बहुत ही जाने पहचाने से ऐसे लगे, तब उसने उसको उठाकर उसको देखा, And he found out that there are some pages from the New Testament. और उसने वहां पर देखा कि वो तो नए नियम में से कुछ कागज थे, And obviously one of the jailers might be using them as his toilet papers. और ये बहुत ही निश्चित बात है कि उनमें का कोई जो जेलर था वो उसके सोच को साफ करने के लिए उसका उपयोग कर रहा था। This young preacher cleared the dirt out of it and kept in his pocket so that he could read later. और फिर वो युवान प्रचारक ने उस कागज को साफ किया और अपने जेब में रख दिया ताकि वो बाद में पढ़ सके उसको। So later that night, in the middle of the night, और जब मध्य रात्रि में उस रात को, when everybody was sleeping, जब सब लोग सो गए थे, so dark, वहां पे बहुत ही अंधियारा था, so he lit his candle and he read these words from Romans chapter 8 verses 35 to 39. और वहां पर उसने मोमबत्ती को जलाकर रूमी 8:35 से 38 वहां पर उस कागज पे जो था उसको पढ़ा उसने। This is what he read. और यहाँ पर इस प्रकार उसने पढ़ा, Who will separate us from the love of Christ? Will hardship or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are accounted as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. और रूमी 8:35 से 38 में इस प्रकार लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, हमें वध होने वाली भेड़ जैसा समझा गया, किंतु इन सब बातों में हम उन्हीं के द्वारा पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमसे प्रेम किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है
कि न तो मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न नरकदूत न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य गण न आकाश में या पाताल में न कोई शक्ति और न कोई समस्त सृष्टि में कोई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। In the darkest hour of his life, उसके जीवन के सबसे अंधियारेमय समय के अंदर the resurrection has shone upon him. पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है उसके ऊपर उज्ज्वलित हुआ। Christ met him in his despair, in his disbelief, and his delusion. और मसीह उनको उसकी हताशा के समय में, अविश्वास के समय में और छल के समय में उनके सामने आए। वो However, he was executed later, उसके बाद उसको मारा गया, but he could see what is beyond the grave. परंतु वो उस रात को कब्र के उस पार देख पाया। That is the power of Christ's resurrection. ये परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। So in the midst of this coronavirus that we are in, तो अभी हम ये जो कोरोना वायरस की इस परिस्थिति के अंदर से जब गुजर रहे हैं, as we are gripped with fear, हम डर से जकड़े हुए हैं, we are faced with uncertainty. बहुत ही अनिश्चितताओं ने हमें घेरा है। Resurrection offers three things to us. पुनरुत्थान हमें तीन बातें देती है: सामर्थ्य, Courage in the midst of despair, इस हताशा के समय में सामर्थ्य, and rebuttal in the midst of disbelief, अविश्वास को धमकाता है, and a spiritual awakening in the midst of delusion. और इस छल के समय में हम जब धोखे में हैं तब हमें एक आत्मिक जागृति देता है। And not only that, it invites us, this Christendom, to witness his resurrection to others. और उसके साथ साथ हमें वो आमंत्रण भी देती है, हमें न्योता भी देते हैं कि हम इस पुनरुत्थान की साक्षी दूसरों तक लेके जाएं, so that we as a humanity could say, my Lord and my God, to the resurrected Lord, our जिससे Savior कि हम Jesus पूरी Christ. मानव जात मिलकर इस प्रकार की घोषणा को कर सके कि मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। I hope and it's my prayer that God would help us to come out of this crisis very soon. मेरी आशा और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें मदद करेगा कि हम इस महामारी से जल्दी से बाहर निकले। But till then, let us hold on to this power of Christ's resurrection. परंतु तब तक आइए हम इस परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पकड़े रखें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you for the word that has come to us, O Lord. We thank you that in your resurrection we have courage in the midst of our despair, and we have rebuke in the midst of our disbelief, and we have hope in your resurrection, O Father, a spiritual awakening in the midst of our delusion, O Lord. And also we want to partake in this confession of you, that you are the risen Lord, and we in you there is hope for us, O Father. Until then, O Father, you help us to hold on to this power of your resurrection, so that we could pass through this difficult phase in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Let us say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. May the grace, mercy, and love of our triune God be with us now and forevermore. Amen. Amen.